Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am back again with a new YouTube video. I don't even remember after how many months. I have to check now. So a few days back, I posted a poll, a story with this question answer wala sticker, that if you have any questions related to business, small business, how to start, how did I start, if anything that you would want me to tell you guys, anything that you would like to know about my business, you can drop down your comments. No, not comments, answers. And I was actually not expecting to get so many responses. So yeah, let's do a Q&A session on how did I start my small business and why am I not posting these days and what inspired me. I have got a lot of questions to answer today. So yeah, let's begin. Okay, but before we begin with, let me just remove this tripod from my background. God. Nahin yaar, it's still visible. Wait. So this is kind of my studio setup these days, जहाँ पर मैं videos record करती हूँ. So yeah, now let's get into the video, guys. And yeah, your girl is broke. She don't have any professional camera to shoot videos और एनी अदर स्पेयर फ़ोन. सो मैंने सारे क्वेश्चंस जो है ना मेरी स्पेशल डायरी में लिख लिए हैं एंड इसमें से रीड करके मैं आंसर करूँगी आपके क्वेश्चंस. आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन. दिस इज़ गोइंग टू बी माई वेरी फर्स्ट Q&A वीडियो ऑन यूट्यूब. डैम. Okay, so let's get started. Okay, so the question number 1 we have here is, how do you get orders? What do you think of candle business? Okay guys, so I started my candle business, Candle Essentia, in 2024, in May 2024, yeah, and it's been 2 years now, like almost going to be 2 years now this year of running my candle business. And to be very honest, I have not even spent a single rupee on Meta ads till now. I mean, I think that I should have, but I haven't. I just didn't had enough budget. तो मैंने यही सोचा था कि जब भी करेंगे उसको अच्छे से करेंगे, so that अच्छे रिस्पॉन्सेज आए. एंड ऐसा नहीं कि 1-2 वीक में हम बंद कर देंगे एड्स को. सो वेन एवर वी डू इट विथ अ नाइस गुड बजट कि हम उसे 1 महीना 2 महीने तक रन कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर इनटू बिजनेस, यू माइट हैव नोटिस कि एड्स आर एक्सपेंसिव. सो या जो भी मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं, दे आर कम्प्लीटली ऑर्गेनिक. मैं कोई भी एड्स रन करके मुझे कोई कस्टमर, कोई इंक्वायरी कुछ नहीं मिली. मैंने एड्स रन ही नहीं करे हैं. तो मैं खाली रील्स पोस्ट कर देती हूँ इंस्टाग्राम पे एंड देन वो लोगों तक पहुँच जाती है. एंड देन जो भी इंटरेस्टेड रहता है, दे मेक अ परचेज फॉर द कैंडल्स. आई थिंक ऑफ कैंडल बिजनेस इज़ कि दिस फील्ड इज़ वेरी सैचुरेटेड. दिस बिजनेस मार्केट इज़ वेरी सैचुरेटेड एंड इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू स्टैंड out in this business market. And if you are like trying to stand out in the market now, it is going to take a lot of time for you to get orders. Honestly, डजेंट मैटर आप कितनी ही सुंदर न्यू कैंडल, एक एक्सक्लूसिव कैंडल लॉन्च कर दो, एक ऐसा डिज़ाइन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी तक इंडिया में, ऐसा भी कुछ लॉन्च कर दो, तो भी आपको उसके ऑर्डर्स नहीं आएंगे. अगर आपका जो कस्टमर बेस है अगर वैसा नहीं है तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे उतने. एंड आई थिंक दैट दिस कैंडल मार्केट इज़ हेवीली सैचुरेटेड एंड ऑल्सो ओवरली डिस्ट्रॉयड बिकॉज आई हैव सीन पीपल सेलिंग कैंडल्स फॉर लिटरली 10 रुपीज़. चॉकलेट नहीं बेच रहे हो तुम, कैंडल बेच रहे हो. कैंडल जिसको बनाने में, तुम चाहे छोटी कैंडल बनाओ या बड़ी कैंडल बनाओ, मेहनत लगने वाली है, तुम्हारे रॉ मटेरियल्स यूज़ होने वाले, तुम्हारे मिसलेनियस जो है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस,
जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इंक्लूड होने ही वाले. एंड हाउ आर यू इवन सेलिंग एट 10 rupees, दैट टू सोया वैक्स कैंडल्स? आई हैव सो मैनी क्वेश्चंस फॉर यू गाइज. Okay, so yeah, these are my thoughts on candle business. Now, the second question we have is story behind the name of the brand. Okay, Candle Essentia. So, firstly, starting with the meaning, Candle Essentia is the essence of candles. Candle or Essentia, essence of candles. Yeah, candles ka essence is basically the name का मीनिंग. एंड स्टोरी बिहाइंड द नेम, आई डोंट रियली हैव एनी स्टोरी टू टेल यू गाइज. इट वॉज अ वेरी इम्प्रॉम्प्टू नेम. मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं, आई जस्ट वॉन्टेड समथिंग यूनिक एंड समथिंग नॉट रूटेड इन इंडियन कल्चर, वैसा कुछ. आई डोंट नो वाई, बट बैक इन 2024 आई वॉन्टेड दिस नेम जो बाकी जगह से स्टैंड आउट करे. लाइक जो मैंने ऑब्जर्व किया था, सबके नेम में ऑरा था या फ्लेम था या विक्स था या वैक्स था. सो समथिंग विच इज़ रिलेटिंग टू कैंडल्स बट डिफरेंट फ्रॉम दीज. सो देन आई केम अप विद दिस नेम कॉल्ड कैंडल एसेंसिया. I don't even know if this word exists or not, but yeah, it is what it is now. Question 3. I want to know the backstory. How did you started this and when? Okay, backstory. Nothing heavy, nothing very specific to say. It's just that I am a person जो बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते चीज़ों से. मुझे नहीं पता मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर पाती हूँ कि नहीं, बट मुझे इतना पता है कि मैं दूसरों से इन्फ्लुएंस ज़रूर हो जाती हूँ. एंड अगर मेरे पास वो करने की स्किल्स रही, कैपेसिटी रही, पैसे रहे, बट आई डोंट यूज़ ऑनलाइन गेटवेज सो एज ऑफ नाउ. सो आई कांट टेल यू गाइज अबाउट द स्पेंडिंग वाला थिंग, बट अगर मेरे पास स्किल्स है, अगर मेरे पास रिसोर्सेज है, तो मैं वो चीज़ कर लूँगी. इज़ वॉट आई थिंक. मैं बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ. बाय द वे, आई एम नॉट ट्राइंग टू बिकम एनी इन्फ्लुएंसर फ्रॉम क्रिएटिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. आई डोंट इवन नो एंड आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई एम केपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एनी वन. भाई, मैं किसी को क्या ही इन्फ्लुएंस करूँगी. मैं खुद सामने वाले को देख के 2 मिनट में इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ. सो वट हैपन कि इन 2024 आई स्टिल रिमेंबर अच्छे से कि कैंडल्स का क्रेज़ बहुत चला था इंस्टाग्राम पे. एंड मुझे जितने भी रील्स आ रहे थे ना, सब आउट ऑफ इंडिया के ही थे रील्स थे कि ओके यूके में ऐसी कैंडल्स बन रही है, ओके यहाँ पर ऐसे कैंडल्स है, ओके इंडिया के बाहर ऐसे कैंडल्स है. एंड बैक देन आई डिड नॉट इवन नो कि ऐसे डिज़ाइनर टाइप के कैंडल्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड स्पेशली इंडिया में करते हैं. सो बैक देन मुझे लगा कि भाई दिस इज़ सच अ यूनिक आइडिया टू लॉन्च लड्डू कैंडल्स. आई विल लॉन्च टेडी कैंडल्स, आई विल लॉन्च फ्लावर कैंडल्स एंड वॉट नॉट. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी सच अ यूनिक आइडिया एंड आई एम गोइंग टू बैग इन सो मैनी ऑर्डर्स एंड आई एम गोना expand my business, open my store, set up and become a malkin at the age of 19, 20. Okay, so ये मेरी एक गलती है कि I did not do enough research before getting into the business line. And let me tell you guys कि जब मैंने ये candle business start किया ना, I did not even know how to make candles. Still I jumped into the market. And now that once I have jumped, I need to like swim. अगर मैं ocean में कूद गई हूँ तो I have to swim in order to survive, in order to live. So then I started learning candle making. And then जब like it literally took me around 6 to 8 months to learn candle, to make a perfect scented candle. And उसके बाद मैंने कैंडल एसेंसिया नाम से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया. मतलब क्या, कुछ रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं किया, जस्ट डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे गए, एक नया पेज बना दिया एंड देन बूम, माई स्टोर इज़ लाइफ. यू गाइज जस्ट DM me for the orders. That was the thing. And सो द बैक स्टोरी ऐसा कुछ नहीं था. मैं बस अंग्रेज़ी कैंडल वीडियोस से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गई थी. मुझे लगा कि भाई कितना ढांसू आइडिया है, चलो इंडिया में कैंडल बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं विद ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स एंड आई एम गोइंग टू बिकम अ मालकिन एट द एज ऑफ 20. आइडिया फ्लॉप्ड, बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप. नॉट फ्लॉप इन एज आई से, बट या जो वो चीज़ हुआ जो एक्सपेक्टेड नहीं था. सो this is the backstory. And also that I always wanted to start something of my own. I wanted to get into business line. I did not
wanted to and still don't want to go into the service sector line. I don't know why, I just want to be the boss of myself. So I thought कि चलो एक बार ये स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करके देखते थे. उस टाइम पे ना कैंडल बिजनेस और स्मॉल बिजनेस ये दोनों इतने ज़्यादा ट्रेंड में थे. आई वाज सो इन्फ्लुएंस्ड, इंस्पायर, मतलब मैं सब कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया. हाउ डिड यू स्टार्टेड दिस एंड व्हेन? How did I start? I started this without any registration, without any legal documents. I started it solely from Instagram, and I'm still doing that. And when did I start? I started in, like I said, May 2024. Question number 4. Where are you based in? I am based in Palghar/Mumbai/Maharashtra. Basically I am based in Mumbai, Maharashtra, but Mumbai से हट के आता है Palghar, so I am from Palghar/Mumbai, Maharashtra. Okay. Question number 5. What mistakes you realized you shouldn't had done? I think I can make a separate YouTube video out of this, because जो भी current situation चल रहा है, the reason why I am not posting these days on my Candle account, why I am not why am I not posting anything about orders, कौन से order गए, कौन सा order आया and all that, nothing on my WhatsApp, on my Instagram, nothing I'm doing. I'm just ओके. सो ये चीज़ और मेरा जो मिस्टेक्स है कि मुझे पहले क्या नहीं करना चाहिए था, हाँ, जो नहीं करना चाहिए था मुझे, आई थिंक इस पर मैं एक सेपरेट यूट्यूब वीडियो बना सकती हूँ, बिकॉज आई हैव टू से अ लॉट ऑफ स्टफ गाइज. दिस डेफिनेटली डिजर्व्स अ सेपरेट वीडियो, सो रिमाइंड मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो आउट ऑफ दिस. Question number 6. Do you have a team? Yeah, it's me. I am a team of myself. ठीक है. I have divided myself into every segment of my business. मैं आपको कस्टमर केयर में भी मिलूँगी, मैं आपको फाउंडर तो हूँ ही, ठीक है, मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी मिलूँगी, मैं आपको लॉजिस्टिक्स में भी मिलूँगी, हर जगह. एंड जब भी ऑर्डर ज़्यादा रहते हैं तो my little brother, he comes forward to help me up with that. My mother, my dadi and my dad, he is very good at packing orders. So जितने भी स्टडी आइटम्स, अगर आप मेरे कस्टमर हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो जो भी कैंडल्स आपको रिसीव हुए हैं ना, जो एकदम अच्छी कंडीशन में है, मेरे डैड ने पैक किए थे वो. ओके. So now is question number 7. Any learnings over the year? I'm going to include this one in my mistakes wala video. Learnings, mistakes, same. So yeah, I will make a separate video out of this. Question number 8. How do you do delivery, parcel delivery? Okay. पार्सल डिलीवरी तो एज एन I'd say कि मैं ज़्यादातर लोकल कुरियर्स ही प्रेफर करती हूँ. And I take the payments, like extra payment for the delivery charges. So suppose for example एक candle अगर 500 rupees की है, so 500 rupees for the candle and 50 rupees or 60 rupees additional for the delivery, which makes it to 560 rupees in total. And most of the times I prefer local couriers because वो cheap रहते हैं, customer को ज़्यादा pay भी नहीं करने का मन रहता है, additional delivery रहता है तो आई प्रेफर लोकल कोरियर. बट अगर उनका लोकेशन जो है वो नॉन सर्विसेबल है, जहाँ पे लोकल कोरियर का सर्विस जाता ही नहीं है, देन आई प्रेफर DTDC हो गया या फिर डिलीवरी हो गया. इंडिया पोस्ट एंड वुड नेवर रिकमेंड. आई हैव नॉट इवन ट्राइड इट, तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ, मैंने सुना है कि वो कैंडल्स तोड़ देते हैं, तो इस डर से मैंने कभी ट्राई नहीं किया और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि मत करो. बट ऐसा नहीं है कि डिलीवरी या DTDC कैंडल्स नहीं तोड़ते या लोकल कुरियर्स नहीं तोड़ते हैं. इट जस्ट डिपेंड्स कि आपने कैसे पैक की है. एंड अगर आपने स्टडी पैक की है उसके बाद भी टूट गए तो या डेफिनेटली दिस इज़ कुरियर वाले का फॉल्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मेनी ऑर्डर्स हैव यू शिप्ड टिल नाउ? ओके, गुड वन. इतना ज़्यादा काउंट तो मैंने रखा नहीं था. मुझे रखना चाहिए था, बट
मुझे इतना पता नहीं था स्टार्टिंग में कि ये भी करना होता है, ये भी करना होता है. आई learned about business. I learned about what exactly business is while doing my business. I knew nothing before starting my business. So अभी मुझे पता है कि हमें ऑर्डर का ट्रैक भी रखना रहता है एंड देन न्यू अकाउंटिंग ईयर में सब कैलकुलेट करना रहता है कि हमने कितने ऑर्डर दिए, हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ एंड एवरीथिंग. वी हैव टू मेंटेन लाइक अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी सिंगल थिंग इन बिजनेस. सो ये चीज़ जो है ये मैं अभी दिसंबर 2025 से करना स्टार्ट की हूँ. तो ऐसा तो रिकॉर्ड एज ऑफ नाउ है नहीं मेरे पास एकदम स्ट्रेट नंबर्स का, बट यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड और मोर दैन 100 ऑर्डर्स मैंने शिप करे हैं इन माई 2 years ऑफ बिजनेस. 100+ ही है ऑफ कोर्स, 150 200 आई डोंट रिमेंबर अच्छे से. आई डोंट नो, मैंने काउंट ही नहीं किया. आई डोंट इवन रिमेंबर, मतलब काउंट ही नहीं किया तो याद कैसे रहेगा. या सो क्वेश्चन नंबर 10, when did you start and who was your first customer? Okay, so I started again, मैं रिपीट कर रही हूँ बिकॉज हर क्वेश्चन को एक फेयर आंसर डिज़र्व, मतलब हर क्वेश्चन एक फेयर आंसर डिज़र्व करता है. आई स्टार्टेड इन May 2024 एंड माई फर्स्ट कस्टमर वॉज अ वेरी काइंड लेडी. अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, अपार्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, अगर तुम मेरे ऑर्डर लिस्ट में से रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स को हटा दो तो जो मेरी सबसे पहली कस्टमर थी, जो स्ट्रेंजर थी, जिनको मैं कभी पर्सनल लाइफ में मिली नहीं हूँ, जानती नहीं, कुछ कॉन्टैक्ट नहीं, नथिंग, she is a lady. She is the sweetest, kindest lady, and I am really expecting ki she is watching this video right now. Her name is Nabila Masood. She is the owner of Comfy Club. It's like a it's a fashion brand. वो कपड़े बहुत अच्छे सेल करते हैं वहाँ पे. So she is my first customer for candles. She is such a sweet lady, and when no one was believing in me, my business, my product, this lady came forward just to cheer me up, just to support me. शी हैड लाइक, या मैं उन्हें कभी नहीं मिली लाइफ में, अभी तक कभी नहीं मिली, मैं पहले से भी उनको नहीं जानती थी, बट जस्ट टू सपोर्ट just to support a young girl and a small business, she placed an order of a candle worth, I don't remember उस टाइम प्राइस क्या था, 300 400, I don't remember, but she placed this order of white color का bubble candle which was vanilla scented. I remember अच्छे से. Guys, my customer base is like so tiny and you guys are so sweet. I do remember you all by names, okay? तो अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि इसने सबसे पहली कैंडल्स कौन सी मंगाई थी या आपके कस्टमर्स कौन हैं जो सबसे अच्छे हैं, I can literally count on my fingers and I remember their order, their name, everything. So yeah, my first customer was Nabila Didi. I really hope you're watching this video. Love you, just know that. And yeah, thank you very much for believing in me. Thank you very much for purchasing this candle from me, because जब इन्होंने मेरा candle purchase किया, then I got this motivation कि हाँ, my business is growing and strangers are believing me, they are putting in their trust in me and my product. So now कृतिका तुझे करना ही पड़ेगा, because जब तक कोई ऑर्डर नहीं आया था फ्रॉम स्ट्रेंजर, इट वाज फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तब तक इतना मोटिवेशन था नहीं, चलो अपने ही लोग हैं करके. बट जब इनका ऑर्डर आया उसके बाद से ना रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई, चीज़ें सीरियस हो गई कि ओके, नाउ पीपल आर पुटिंग इन देयर ट्रस्ट, देयर मनी इन टू माई स्मॉल बिजनेस, इन टू माई ड्रीम. तो नाउ आई नीड टू स्टैंड आउट. अभी उनके ड्रीम्स और उनके ट्रस्ट पे खरा उतरना ही पड़ेगा. आई नीड टू टेक दिस थिंग सीरियसली. सो दैट्स व्हेन द गेम चेंज्ड. Okay, question number 11 is, how much did I invest into my candle business? पूरा एक एग्जैक्ट काउंट तो नहीं पता, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था कैंडल बिजनेस, आई स्टार्टेड विद अ वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, बट इट वाज रिकरिंग. आई डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक इट वॉज अराउंड 3000 to 500 रुपीज़ जो मैंने इन्वेस्ट करके स्टार्ट किया था. स्टार्टिंग में आई हैड नो आइडिया अबाउट वैक्स, कौन सी वैक्स लेनी चाहिए, कौन सी फ्रेग्रेंसेस लेनी चाहिए, क्या क्या साइंटिफिक चीज़ें रहती है अबाउट कैंडल्स, कब पोर करना है, कब ऑयल मिक्स करना है, कब उसे मोल्ड में डालना है, कब डी मोल्ड करना.
आई हैड नो क्लू, आई हैड नो नॉलेज अबाउट दिस थिंग। एंड ये ट्रायल एंड एरर जो मेरे 6 to 8 months में हुए हैं, उसमें मेरा इतना ज़्यादा वेस्ट हुआ है मटेरियल कि मैं बता नहीं सकती। 5 to 10 thousand तो मेरे रुपीज़ उसी में वेस्ट हुए हैं। एंड देन उसके बाद जब धीरे धीरे मैं सीख गई, जब इनका मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था, उसके बाद जब चीज़ें जब सीरियस होने लग गई, तब मैंने इन्वेस्ट किया। एंड आई रिमेंबर अच्छे से, मैं ना आई डोंट हैव दैट बॉटल विथ मी राइट नाउ, बट क्या पता मैं कमिंग वीडियोस में बता दूंगी। सो मैंने सब छोटे छोटे फ्रेग्रेंस बॉटल्स के साथ स्टार्ट किया था मेरा बिज़नेस। देवर 25 ml की इतनी छोटी सी बॉटल थी फॉर फ्रेग्रेंसेस। एंड फ्रेग्रेंसेस कम लाइक सो कॉस्टली, इतनी कॉस्टली आती है फ्रेग्रेंसेस। तो मैं डर डर के छोटे छोटे बॉटल्स मंगाती थी। व्हाट इफ़ ऑर्डर नहीं आएगा, व्हाट इफ़ चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, पैसा वेस्ट हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो स्टार्टिंग के 4-5 months ऑफ स्टार्टिंग कैंडल एसेंसिया, मैं ये छोटे छोटे 25 ml के बॉटल्स मंगाती थी, जो मुझे अराउंड, आई डोंट रिमेंबर अब अच्छे से कितना, हाँ मतलब कुछ 80 रुपीज़ का एक छोटा सा 25 ml का बॉटल मिलता था, आई थिंक 80 रुपीज़ का। हाँ, तो उस टाइम पे 80 रुपीज़ ठीक है, चलो मतलब कंसिडरेबल था। एंड देन धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस आने लगा, तो फिर 25 का मैंने 50 ml में किया, देन मैंने उसको 100 ml में किया, देन आई वेंट फॉर 150, एंड अब तो मैं उसे 500 ml, जो बेस्ट सेलिंग फ्रेग्रेंसेस है वो 500 ml की ये बड़ी बड़ी बॉटल्स मंगाती हूँ। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट द प्राइसिंग, बिकॉज एक बॉटल की प्राइस 1500 से 2000 रुपीज़ तक की रहती है 500 ml का। सो या मेरा ऐसा ही कुछ इन्वेस्टमेंट था, आई डोंट रिमेंबर, बट जो सीरियस इन्वेस्टमेंट था मेरा वो अराउंड 5000 तक गया था। ट्रायल एरर में मेरे बहुत वेस्ट हुए थे पैसे, बट जो सीरियस वाला हुआ था उसके बाद इन्वेस्टमेंट मेरा, वो मेरा कुछ 5000 रुपीज़ के आसपास हुआ था। Question number 12. Why am I inactive these days? Okay, so this is something. Okay, so why I am inactive these days is because a lot of things are going on from past a few months. I'd say November, December, Jan and Feb is going on currently. ये 4 महीनों में बहुत सारी चीज़ें मैंने रियलाइज़ की अबाउट माई बिजनेस एंड अबाउट माई प्रोडक्ट्स, लाइक इन अ गुड वे। एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मतलब आई एम फाइटिंग सो मैनी थाट्स इंटरनली इन माई माइंड, एंड आई एम ओवर थिंकिंग अ लॉट, एंड आई एम कंस्टेंटली कंपेयरिंग विद अदर बिजनेस ओनर्स, their growth and why I am not growing. And then December was the very hard month for me, because वहाँ पे लाइन बाय लाइन ये हुए थे बल्क ऑर्डर्स जो थे, वो फॉर नो रीज़न दे गॉट डिक्लाइंड कि हमें नहीं करना। And I was like, क्यों नहीं करना? Then they ghosted me. So it was a very harsh month, December. जिसके बाद सब चीज़ें धीरे धीरे ना बदलने लगी, and as like realizations होने लग गए। बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डाउट था, ओवर थिंकिंग था, तो मेरे पोस्टिंग्स भी धीरे धीरे कम हो गई, बिकॉज रीच भी नहीं आ रही थी इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के साथ। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि रीच भी नहीं आ रही थी रील्स पोस्ट करने के बाद। सो आई वाज नॉट रीचिंग आउट टू अ वाइडर ऑडियंस और अ न्यू ऑडियंस। मैं मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं अराउंड 700-750, उनमें ही मेरी रील सर्कुलेट हो रही थी बार 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 बार, एंड एवरीथिंग नेगेटिव वॉज गोइंग ऑन। सो इसकी वजह से आई वॉज इनएक्टिव। बट अब धीरे धीरे मैं धीरे धीरे एक्टिव हो रही हूँ वापस से, बिकॉज वी आर रीब्रांडिंग गाइस, एंड व्हाट इज़ इट एंड व्हाट इट्स गोइंग टू बी, यू विल come to know about it very soon in March. Okay. Question number 13. Where did you learn candle making from? Good question. I was really expecting कि कोई मुझे ये question पूछे कि मैंने candle business candle making कहाँ से start किया, because I am so excited to answer this, guys. मैंने कहीं से start नहीं किया, मैंने खुद से सीखा। See, I am a firm believer कि I can do anything and everything, and I don't need to invest heavy amount into such courses, workshops to learn. I think like मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी स्मार्ट हूँ कि मैं यूट्यूब वीडियोस देख करके चीज़ें तो सीख ही लूँगी। एंड आई स्टार्टेड कैंडल बिजनेस ऐसे ही, तो मैं धीरे धीरे यूट्यूब वीडियोस देखती थी एंड खुद से ही सीखा। एंड
इट्स लाइक बहुत ही बुरा ट्रेट है ये मेरा, बट अब इट इज़ वॉट इट इज़। एंड मैंने अपने आप को 1 महीने का टारगेट, मैं कोई भी चीज़ अगर सीखना रहता है मुझे, मैं अपने आप को 1 मंथ का टारगेट देती हूँ। कृतिका, यू हैव 1 मंथ, यू हैव टू लर्न दिस फ्रॉम यूट्यूब और एल्स यू आर गोइंग टू ड्रॉप दिस फॉर एवर। सो इट्स लाइक अ डू एंड डाई सिचुएशन फॉर मी। सो मैं 1 महीने में अ लॉट ऑफ गाइज आस्क मी कि मैंने गिटार कहाँ से सीखा। मैंने यूट्यूब से सीखा। कितने महीने लगे मुझे? 1 महीने लगे, बिकॉज मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि आई हैव टू लर्न गिटार इन 1 मंथ। कोई नॉर्मल बंदा या बंदी 1 महीने में गिटार बजाना नहीं सीख सकता, बट आई डिड। दिस इज़ समथिंग आई ब्रैग अबाउट अ लॉट, बट दिस इज़ इक्वली नेगेटिव। ओके, ये चीज़ कोई मत करना मेरे से इन्फ्लुएंस। अगर कोई हो भी रहा है तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस, बिकॉज आई नो कि मैंने अपने आप पे इतना प्रेशर डाला था उस टाइम, उस 1 महीने, कि मुझे गिटार सीख के रहना ही है। आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट माई पेरेंट्स अमाउंट इन टू एनी कोर्स, इन टू एनी अकेडमी टू जस्ट लर्न अ गिटार। बट सीखा मैंने 1 महीने में, तो वही सेम चैलेंज मैंने खुद को दिया था कि मुझे 1 महीने में कैंडल मेकिंग सीखना है। नहीं हुआ गाइज, नहीं हुआ, बिकॉज मुझे लगा था, वीडियोस देख के लगता है कि भाई कैंडल मेकिंग इज़ सच एन ईजी टास्क, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली। उसमें बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं। उसमें यू हैव टू टेक केयर ऑफ द टेम्परेचर, टेक केयर ऑफ द प्रॉपर मेजरमेंट, प्रोपोर्शंस जो रहती हैं, सब चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है, तभी जा कर के एक परफेक्ट कैंडल बनती है। एंड ये चीज़ ना मुझे एक ही सिंगल यूट्यूब वीडियो में किसी ने नहीं बताई थी। सो दैट्स द रीज़न वाई इट So that's the wait. Yeah, I'm back, guys. So sorry for the interruption. Okay, so where was I? हाँ, कि मुझे 1 महीने में कैंडल मेकिंग तो सीखना ही है। एंड मुझे ये चीज़ जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी एक कैंडल बनाने में जो लगती है, मुझे एक यूट्यूब वीडियो में कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा था, बिकॉज आई डिड नॉट नो कि कैंडल बनाते हो जब तो उसमें फ्रॉस्टिंग होती है, उसमें वाइट स्पॉट्स निकलते हैं, उसमें और भी क्या सिंक होल्स आते हैं, टनलिंग हो जाती है, ड्राउनिंग होती है, मशरूम ड्राउनिंग होंगे। ये सब जो कंसेप्ट थी ना, ये सब मुझे नहीं पता था। एंड दैट्स द सोल रीज़न कि मुझे कैंडल सीखने में, अपना बिज़नेस स्टार्ट करने में 6 से 8 महीने लग गए। एंड मुझे ना मतलब पता भी नहीं था कि कौन सी वैक्स सही होती है कैंडल में। आई जस्ट न्यू कि सोया वैक्स में भी चंक्स या फिर फ्लेक्स। आई हैड नो क्लू कि मुझे कौन सी वैक्स लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। अगर मैंने कोई गलत वैक्स ले लिया तो उसको फिक्स कैसे करते हैं। आई हैड नो क्लू, हैड नो नॉलेज अबाउट दिस बैक देन। सो दैट्स द रीज़न वाई इट टुक मी लाइक 6 to 8 months टू मेक अ परफेक्ट कैंडल, one perfect candle. I also did not know about curing now. So yeah, you learn from your mistakes. I have learned. I'm still learning. And just to add, I still haven't taken up any course, any workshop for candle making till now. Okay, now question number 14. Inspiration for business, and how was the feeling of the very first delivery? Okay, my inspiration for business was the heavy influence of Instagram reels. My candle business is the result of heavy consumption of reels. Candle के reels and small business के reels का नतीजा है मेरा candle business. And the feeling of my very first delivery, guys, I was so happy कि मुझे एक स्ट्रेंजर का ऑर्डर आया, बट आई वॉज सो नर्वस एट द सेम टाइम कि उन्हें ये कैंडल पसंद आएगी कि नहीं आएगी। एंड लाइक आई सेड कि आई डिड नॉट नो अबाउट कैंडल क्योरिंग बैक देन। सो मैं क्या होता था ना कि आई स्टार्टेड विद जस्ट द बबल कैंडल, जो बिग बबल कैंडल्स आती हैं ना, आई विल अटैच अ पिक्चर हियर। सो जब बिग बबल कैंडल आती है ना, उनसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। आई जस्ट इन्वेस्टेड इन टू दिस ओनली वन मोल्ड ऑफ बिग बबल कैंडल. And I started my business, and I was selling the same candle after launching this page Candle Essentia. मैं कुछ 4-5 महीने खाली बबल कैंडल्स ही सेल किया मैंने। जितनी ऑर्डर आए मैंने सब में बबल कैंडल्स ही दिया। धीरे धीरे मैंने कलर्स ऐड किए, तो अब instead of white bubble candle we have colorful bubble candles, but we have bubble candles only. So ये था. And
तो मुझे उस टाइम पे क्योरिंग का कुछ पता नहीं था कि कैंडल क्योर करना पड़ता है मिनिमम 7 to 14 डेज़ फ्रेगरेंस के लिए एंड ऑल दैट। तो मेरे एक बबल कैंडल बनती थी एंड जैसे सपोज़ आज शाम को मेरी कैंडल बन के रेडी हो गई ना, तो मैं रात में वो कैंडल जलाती थी, थोड़ी देर तक फ्रेगरेंस आती थी, वाज लाइक ओके मेरी कैंडल बन गई, एंड देन बाद में उसकी फ्रेगरेंस नहीं आती थी, एंड देन मैं एकदम डिसअपॉइंट हो जाती थी, एकदम डिप्रेस हो जाती थी कि भाई क्यों नहीं आ रही फ्रेगरेंस क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मुझे लगता था मेरे कैंडल में कोई इशू, फिर मैं और ज़्यादा फ्रेगरेंस ऑयल डालूंगी उसमें, और ज़्यादा फ्रेगरेंस ऑयल डालूंगी, एंड देन बाद में वो कैंडल में से ना ऑयल निकलता था, लीक होता था, बबल्स रह जाते थे, एंड देन आई हैज़ टू वंडर कि ये क्यों हो रहा है। एंड देन मैंने गूगल पे सर्च किया, उस टाइम पे ChatGPT इतना मुझे आइडिया नहीं था ChatGPT एग्जिस्ट करता है करके, तो मैं गूगल पर डालती थी, मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी कि भाई व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। आई ऑल्सो डिड नॉट नो कि अगर वैक्स में पानी चला गया तो उतना वैक्स ख़राब हो जाता है, आई डिड नॉट नो। तो अगर गलती से मोल्ड में पानी या ड्रॉप्स चले गए वाटर के, तो उसके ऊपर से मैंने वैक्स डाल दिया, तो जितना दूर में पानी रहता था ना उतने दूर में गड्ढे हो जाते थे। आई डिड नॉट नो अबाउट दिस बैक देन, सो आई वाज लाइक भाई क्यों हो रहा है। मैंने अपनी जो वैक्स वेंडर थी उसको इतना झाड़ा था उस टाइम कि भाई तू मुझे गलत वैक्स दे रही है पक्का, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता। एंड शी वाज लाइक नो मैम आई एम सो सॉरी टू हर, लाइक गॉड। But anyways, like I said, you learn from your own mistakes and I learned a lot from my own mistakes. I think कि मैं अगर कोई वर्कशॉप ले लेती ना तो ये चीज़ें मैं प्रिवेंट कर सकती थी, मैं एक फुल फ्लेज्ड एक प्रोफेशनल कैंडल मेकर की तरह लॉन्च हो सकती थी। बट आई ऑल्सो थिंक कि no, it was really important for me to experience these mistakes first hand, so that in order so that in future अगर मैं कोई workshop conduct कर रही हूँ तो I can guide them from my own personal experiences, कि भाई ऐसा हुआ था, then I did this, then I did that, and then this particular thing fixed my candles, ऐसा करके। सो जो मेरा फीलिंग था फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिलीवरी, आई वॉज सो हैप्पी येट सो नर्वस कि उनको फ्रेगरेंस पसंद आएगी कि नहीं आएगी। एंड दिस लेडी जो मेरी फर्स्ट कस्टमर है, नबीला दीदी, शी इज़ फ्रॉम लखनऊ एंड आई एम फ्रॉम पालघर, मुंबई। तो व्हाट हैपेंड कि मैंने कैंडल बनाई, मैंने डिस्पैच कर दिया। इट टुक अराउंड 5 to 6 days टू रीच लखनऊ, एंड 7th या 8th डे पे उनको रिसीव हो गई थी कैंडल। एंड देन शी सेंड मी द रिव्यू। आई वॉज सो नर्वस, मैं इतनी डरी हुई थी उस टाइम पे कि शी विल रिप्लाई मी विद कि फ्रेगरेंस नहीं आ रही है, कैंडल प्रॉपर नहीं है, टूट गई है एंड ऑल दैट। बट देन शी रिप्लाइड इन सच अ स्वीट नोट कि द कैंडल इज़ रियली अमेजिंग, द फ्रेगरेंस इज़ सो गुड। अगर मुझे वो पिक्चर मिलती है ना उनकी रिव्यू की, तो आई विल अटैच इट हियर सो यू गाइस कैन रीड इट। एंड मुझे ना उनके बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा था ऑनेस्टली। मैंने इतना उनसे कंफर्म किया, यू रियली लाइक द कैंडल, उसमें से फ्रेगरेंस आ रही है, नहीं आ रही होगी, अब जला के देखो। एंड देन उन्होंने जलाया एंड देन उनको खुशबू आई, उनको फ्रेगरेंस आई, एंड शी वाज लाइक नो द कैंडल इज़ रियली स्वीट, द वैनिला फ्रेगरेंस इज सो मेलो एंड सो स्वीट, एंड शी वाज जस्ट अप्रिशिएटिंग and trying to cheer me up, and I was like नहीं भाई ये दीदी झूठ बोल रही है, just so that कि मुझे बुरा ना लगे, ये मुझे झूठ बोल रहे कि भाई कैंडल बहुत अच्छी है। I don't even have any words to explain you guys this feeling, but then धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होगी नहीं मेरी कैंडल्स एक्चुअली अच्छी है, but I just did not know about curing process back then. Question number 15. Current MRR कुछ तो ये इनकम रिलेटेड ही होता है, अभी मुझे ना इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, बट इट्स लाइक कि मंथली रेवेन्यू रेट। हाँ, MRR इज़ आई थिंक मंथली रेवेन्यू रेट। सो मेरा मंथली रेवेन्यू रेट इज़ 0 दीज डेज, बिकॉज मैंने कोई ऑर्डर नहीं करे, मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया अपने सोशल्स पर, कुछ नया लॉन्च नहीं किया, कुछ ट्रेंड के साथ मैं बही नहीं हूँ, तो मेरे पास भी कोई ऑर्डर्स बह के आए नहीं है। इंक्वायरीज़ बही हैं बट वो कंफर्म नहीं हुई है, पता नहीं क्यों, बिकॉज उनको कोई चीप वेंडर मिल गया। और तो माई करंट MRR इज़ ज़ीरो गाइस, ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 16.
How do you manage all this? I manage all this is like a level. अब मैं क्या बताऊँ आपको कैसे मैनेज करती हूँ. I don't even have any words to put in to use for this thing. It's just कि मैं स्ट्रेस की गोलियाँ नहीं खा रही हूँ बस. That's it. That is how I manage all this. I hope that answers the question very well. And the last question, guys, is question number 17. What made you start? I think I have already answered this previous one. Yeah, I have already answered this one. Ki what made me start? I got influenced from reels. I got influenced from candle reels, small business के reels, you know, aesthetic packaging के reels, and then वो ऐसे motivational reels की why you want to do service, you become your own boss, you start your own business, and all these fla businesses are flourishing these days. On Instagram you can sell and everything like that. So all of these social media consumption made me start my candle essentia business. Candle essentia. So yeah, that is it for today. And ये वीडियो बहुत ही लंबी बन गई है, बट ठीक है, बननी चाहिए थी, बिकॉज वी हैव 17 क्वेश्चंस हियर एंड मैंने 17 के 17 आंसर किए हैं विथ रियल ऑनेस्टी. पूरे 17 क्वेश्चंस आंसर किए मैंने एंड डिटेल में आंसर किए मैंने अपनी पास लर्निंग्स नहीं बताई हैं, खाली नहीं बता दी हैं मैंने शायद, हाँ बता दी हैं. सो यू नो आई हैव लाइक स्टोरी टाइम भी हो गया है, बहुत कुछ हो गया है यहाँ पर ये वीडियो में. सो आई थिंक ये अराउंड 30 मिनट्स लॉन्ग तक की वीडियो बनेगी, या पता नहीं. मैंने सेगमेंट अभी बीच में इंटरप्ट हो गया था मेरा बिज़नेस फिर बीच में इंटरप्ट हो गया था मेरा वीडियो, तो वो 20 मिनट समथिंग पे एंड हो गई थी. एंड नाउ दिस वीडियो इज़ मार्किंग 10 मिनट्स. आई थिंक अराउंड 30-40 मिनट्स लॉन्ग की वीडियो है. देन मुझे इसे एडिट भी करनी है, एंड देन आई विल बी अपलोडिंग दिस ऑन माई चैनल. एंड देन वही 20-30 व्यूज़ मुझे मिलने वाले हैं ये अकाउंट पे, ये वीडियो पर. अगेन आई डोंट नो, आई एम रियली प्रेइंग कि यूट्यूब का एल्गोरिदम फाइनली मुझे नोटिस करे और ये वाला वीडियो बूस्ट कर दे. आई डोंट नो, मेरा गला सूख गया एकदम से. आई डोंट इवन हैव वाटर हियर. जस्ट फॉर द कंटेक्स्ट, ये हमारे घर का बाजू वाला घर है जो अब ऑफिशियली हमारा है, बट वी आर नॉट लिविंग इन दिस करेंटली. हम मेरे ही घर जो पहला दूसरा नहीं, जो मेन एक्चुअल घर है हम वहीं पे रह रहे हैं. ये जस्ट अ नेबर फ्लैट जो अब हमारा है, अभी रेनोवेशन हुआ नहीं है. आई डोंट हैव एनी वाटर, मतलब फ़िल्टर है यहाँ पे बट ग्लासेस नहीं है, तो चुल्लू भर पानी ऐसे मुझे पीने आता नहीं है. Okay, anyways guys, so let's not stretch this video far again. If you are new to this channel, if this video was insightful for you, then do subscribe, do comment down below कि आपको क्या चीज़ सबसे अच्छा लगा, या if there's any other question that you would like me to answer for you guys, so you can drop it down in the comment section below. You please subscribe to my channel and like this video, share this with any of your candle maker friend or anyone who is owning a business. Might be helpful for them, I don't know, but yeah, this video is definitely going to be helpful and insightful for the candle business owners. So yeah, bye. I think that's all for this. I don't have to add anything, right? No, I don't have to add anything in this video. Oh yeah, by the way, this is my new flower claw clip I got recently from DMart. Will you guys actually believe me कि ये मेरा पहला claw clip है life का. These clips are in trend from I don't know around 2-3 years now, but ये मेरा पहला official purchase है, and that too in this big size. में छोटे छोटे sizes भी आती हैं. वो मुझे किसी ने गिफ्ट की थी a few months back. एक दीदी है, उन्होंने गिफ्ट करा था फॉर दिस हल्दी कुमकुम वाला, तो मैंने लगाया था, बट देन वो टूट गया फ्लावर क्लिप, एंड आई फाउंड इट वेरी क्यूट. एंड दीज डेज आई एम अगेन ऑब्सेस्ड विथ पिंक कलर, एंड आई वॉज इन DMart दिस डे एंड मेरे को ये क्लॉ क्लिप मिल गया फ्लावर वाला, दैट टू इन पिंक, सो आई हैड टू गेट इट. This is such a cute purchase, and it was for 50 rupees, I think 50 or 60 rupees, I don't remember, but the quality is also so nice and sturdy. इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, I think. I don't know, मेरी चीज़ों को खुद की नज़र लग जाती है. प्लीज़ मत टूटना. Yeah. Okay, bye.